Good morning, everyone. This is the sum we will do now. X Company Limited went into liquidation on 1st April 2017. The following balances are extracted from its books on that date. So we have, see यहाँ पे particulars ऐसे लिखा है. Normally in the question में ही ऐसा दिया है. Balance sheet मतलब this should be liability and this should be asset, but this is how they have presented in the question. They have presented the balance sheet in this form. So I have not changed it, but while referring, this side, the left hand side is your liability, right hand side is your asset, but they have referred to as particulars in the question. So capital may we have 2,24,000 equity shares of rupees 10 each, 2,40,000 debentures secured by floating charge 1,50,000. We have bank overdraft, we have creditors. In the asset side, there is machinery, leasehold property, stock, debtor, investment, cash in hand, and we have profit and loss account, which in the asset side signifies loss. Then the following assets are valued as under. मशीनरी का नया वैल्यू दिया है 1,80,000, लीजहोल्ड का नया वैल्यू दिया है 2,18,000, इन्वेस्टमेंट is 12,000, stock is 6,000, debtors is 1,40,000. The bank overdraft is secured by deposit of title deeds of leasehold properties. तो leasehold property से जो पैसा मिलेगा वो हमें बैंक ओवरड्राफ्ट को पे करने के लिए यूज करना पड़ेगा, बिकॉज बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड लोन, इट इज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स. देखो क्वेश्चन में दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड, मतलब इट इज अ सिक्योर्ड लाइबिलिटी, एंड फॉर विच asset it is secured, it is secured on leasehold properties. So उस लीजहोल्ड प्रॉपर्टीज को बेच के जो पैसा आएगा will be used first to pay the bank overdraft, and the remaining amount, if any amount is left out after paying the bank overdraft, the remaining amount will be used to pay other liabilities. There were preferential creditors amounting to 3,000, which were not included in creditors for rupees 60,000. तो creditors 60,000 का जो है ना, उसमें preferential creditors included नहीं है, अलग से they have given preferential creditors. Preferential creditors means those have to be preferred while paying the other liabilities. Preferential creditors examples may be government payment to be done to the government, payment to be done to the employees of the companies are preferential creditors, preferential liabilities. So prepare a statement of affairs to be submitted to the meeting of members creditors. तो हमें क्या प्रिपेयर करना है? हमें प्रिपेयर करना है statement of affairs, which we have already done in the last lecture. So statement of affairs of X Limited, name of the company is X Company Limited. X Limited as on, when is the liquidation taken place? 1st April 2017. So this is the day when there is liquidation of the company X Limited. So there I want to get space in between. So now what we will do, I will copy this format only, because same format to prepare करना है. So ये पूरा I will copy and I will paste here. Yes, the amount everything will be different, but the list and all will be same only ना. तो मैं क्या करती हूँ, इसको में से जो हमारा
So I will remove this amount because I don't want, I want the blank format. I want this blank format. तो असेट साइड पहले इसको ब्लैंक कर देंगे बिकॉज फॉर्मेट बनाने में बहुत टाइम जाता है, बट अमाउंट्स ऐसे निकालने पे इतना टाइम नहीं जाएगा. So this is done. Now here also I don't want any amount. यहाँ पे भी ये सब नहीं चाहिए. क्या है ये सब? वी डोंट वांट, ये सब नहीं चाहिए. I don't want this. I don't want ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या चीज, बिकॉज ये सब में सब अलग रहेगा. ये so what I will do now, the blank format is there. Now I will start. सबसे पहले हमारा assets है. सबसे पहले हम जो फॉर्मेट बनाते हैं उसमें सबसे पहले assets है, estimated realizable value. सबसे पहले we include list A. लिस्ट ए में क्या आता है? लिस्ट ए में आता है असेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड. मतलब देर आर अराउंड 8 लिस्ट इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में 8 लिस्ट है. लिस्ट ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, 8 लिस्ट है. एंड लिस्ट ए में हम सब असेट्स लिखते हैं, लेकिन एक्सक्लूडिंग दोज असेट्स विच हैज बीन प्लेज्ड अगेंस्ट सम लायबिलिटी. वो असेट को छोड़ के बाकी सारा असेट्स लिखना है. तो लेट अस सी, यहाँ पे कैश इन हैंड है. कैश इन हैंड तो हम सबसे पहले लिखेंगे. कैश इन हैंड का रिवाइज्ड वैल्यू नहीं दिया रहता है ना, तो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड इज हाउ मच? कैश इन हैंड इज 3000. सो आई विल राइट 3000. फिर उसके बाद जो जो लाइबिलिटीज यहाँ पे दिया हुआ है वो एक एक करके लिखेंगे. मशीनरी इज दैट, अमाउंट बाद में लिख लेते. लीजहोल्ड प्रॉपर्टी हैज इज अ सेक्योर्ड, इज अ असेट व्हिच हैज बीन सेक्योर्ड अगेंस्ट बैंक ओवरड्राफ्ट. अभी हमने डिस्कस किया कि लीजहोल्ड प्रॉपर्टीज को तो बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए सिक्योर्ड किया है, तो उसको यहाँ पे नहीं, सेकेंड लिस्ट बी में लिखेंगे. देन वी हैव स्टॉक, देन वी हैव डेटर्स, देन वी हैव डेटर्स. तो 1, तो ऐसे भी कर सकते हैं. सो सी 1 2 3 4 5 हमारे पास 5 है. अभी इसका वैल्यूज लिखते हैं, नया वैल्यू. हाँ, जो क्वेश्चन में दिया है लिक्विडेटर ने इतने में सेल किया. इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एंड डेटर्स इज 1,40,000. ये सबको ऐड करो. हाउ मच यू आर गेटिंग? 3 + 1,80,000 + 1 लाख, सॉरी प्लस 12,000 + 6,000 + 1,40,000. आर यू गेटिंग 3,41,000? Check everyone. Are you getting 3,41,000 after adding all the assets? Means this much assets we are having to pay the liabilities. अभी हम लोग सेकेंड हेड में आते हैं, दैट इज लिस्ट बी. लिस्ट बी में आता है असेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड. तो यहाँ पे जो असेट को प्लेज किया है दैट इज लीजहोल्ड प्रॉपर्टी. असेट जिसको प्लेज किया है वो लीजहोल्ड प्रॉपर्टी. उसको बेच के कितना वी हैव गॉट? 2,18,000. तो यहाँ पे लिखेंगे 2,18,000, 2,18,000 लिखेंगे. और जो लाइबिलिटी है ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट, इट इज 54,000. तो मैं यहाँ लिखूंगी 54,000.
2,18,000 में हम पूरा 54,000 पे कर सकते हैं, करेक्ट? फ्रॉम 2,18,000 वी कैन पे द फुल 54,000। तो कोई डेफिशिएंसी नहीं है, पूरा अनसिक्योर्ड कॉलम पूरा पे कर, मतलब अनसिक्योर्ड कॉलम में कुछ भी अमाउंट, मतलब देखो नॉर्मली अगर ये क्रेडिटर 54,000 का था और लीज होल्ड प्रीमाइसेस को बेच के लीज होल्ड प्रॉपर्टी को सिर्फ 50,000 आता तो हम 4,000 डेफिशिएंसी में चला जाता। वो 4,000 अभी क्योंकि लीज होल्ड प्रॉपर्टी जिसके ऊपर वो लाइबिलिटी सिक्योर था वो सेल करके हो गया है, तो अभी अनपेड पोर्शन बिकम्स द अनसिक्योर्ड आइटम, तो उसको अनसिक्योर्ड कॉलम में लिखना पड़ेगा। पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, 2,18,000 मिला, 54,000 का ही सिर्फ लाइबिलिटी था, तो कुछ भी डेफिशिएंसी नहीं है। और सरप्लस हमारे पास कितना बचा है, डिफरेंस देखो, 2,18,000 एंड 54,000 का डिफरेंस, 2,18,000 में से 54,000 माइनस किया तो अभी भी हमारे पास 1,54,000 बाकी है। तो दोनों को ऐड करके हमारे पास एस्टिमेटेड टोटल एसेट्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पे करने के लिए, डिवेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करने के लिए कितना पैसा बचा हुआ है। एज पर लिस्ट ए हमारे पास 3,41,000 है, लिस्ट बी के हिसाब से सिक्योर क्रेडिटर्स को पे करने के बाद 1,54,000 अभी भी हमारे पास बाकी है। तो दोनों को ऐड करो, हाउ मच वी आर हैविंग, वी आर हैविंग 5,05,000, वी आर हैविंग 5,05,000। ये 5,05,000 कैसे आया, 5,05,000 आया by adding 3,41,000 and 1,54,000। नाउ हमें चाहिए समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स। हमारे पास कितना था, ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ असेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड, तो लीजोल्ड प्रीमाइसेस का वैल्यू लिखना है। लीजोल्ड प्रीमाइसेस का वैल्यू है 2,18,000, 2,18,000। सो लीजोल्ड प्रीमाइसेस का वैल्यू है 2,18,000। फिर अदर असेट्स कितना है हमारे पास, अदर असेट्स हमारे पास है 3,41,000। अदर असेट्स हमारे पास है 3,41,000। सो यहाँ पे लिखेंगे 3,41,000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3,41,000। मतलब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स, मतलब टोटल कोई भी लाइबिलिटी पे करने से पहले हमें कितना पैसा मिला। तो हमारे पास 2,18,000 लीजोल्ड प्रीमाइसेस को बेच के मिला, बाकी एसेट्स हमारे पास कितना है जो हम लाइबिलिटी पे करने के लिए यूज करेंगे, 1,64,000। जरा फिर से देखो, 2,18,000, 2,18,000 माइनस 54,000, यस 2,64,000 आता है, करेक्ट। तो यहाँ पे दैट मीन्स 2,64,000 आना चाहिए। जरा देखते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट 54,000 ही है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट, यस यस यस, तो इट इज 1,64,000। अब ये दोनों को ऐड करके देखो वेदर यू आर गेटिंग 5,05,000, 3,41,000 प्लस 1,64,000, इट इज 5,05,000। एंड हमारे पास अदर असेट से 3,41,000, दोनों को ऐड करने पे टोटल टोटल असेट्स कितना है हमारे पास, समरी ऑफ ग्रॉस असेट, दोनों को ऐड करो, 2,18,000, 3,41,000, इज इट कमिंग 5,59,000, 5,59,000, ये भी हो गया। नाउ वी कम टू द लाइबिलिटीज। यहां तक क्लियर है। लिस्ट ए में
सारे एसेट्स जो हमने सेल कर दिया उसका वैल्यू, और कैश जो हमारे पास है उसका तो रिवाइज वैल्यू नहीं हो सकता, वो लिख लिया। फिर एसेट जो प्लेज हो गया है उसका जितना रियलाइज हुआ वो लिखा, क्रेडिटर जितना सिक्योर क्रेडिटर जो था सिक्योर लाइबिलिटी उसका वैल्यू लिखा, फिर हमारे पास कितना सरप्लस बचा वो लिखा, सब ऐड करके इतना पैसा हमारे पास है टू पे द प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। फिर हमारे पास ग्रॉस समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स निकाला, जो असेट्स स्पेसिफिकली प्लेज किया था उसको बेच के कितना मिला, अदर एसेट से कितना मिला, तो टोटल आ गया। नाउ वी कम टू द लाइबिलिटीज। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर्स या सिक्योर्ड लाइबिलिटीज एज पर लिस्ट बी। तो इसको हम सिक्योर्ड लाइबिलिटीज के बदले में सिक्योर क्रेडिटर्स भी बोल सकते हैं, अप टू यू व्हाट यू वांट टू से। तो नॉर्मली तो इसको सिक्योर क्रेडिटर्स बोलते हैं, सो आई विल राइट इट सिक्योर क्रेडिटर्स ओनली। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सिक्योर लाइबिलिटीज भी लिखा है तो ठीक है, सिक्योर क्रेडिटर्स, बट एक्चुअली में इट इज कॉल्ड एज सिक्योर क्रेडिटर्स। सो सिक्योर क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी टू द एक्सटेंट टू विच क्लेम्स आर ई आ गया गलती से, claims are estimated to be covered by assets specifically pledged। तो ये कितने का है, ये 54,000 पे करना था और हमने पूरा पे कर दिया, कुछ भी बचा नहीं है। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्वेश्चन में बोला है 3,000, करेक्ट। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्वेश्चन में बोला है 3,000। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स इज हाउ मच, 3,000। सो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हमने लिखा 3,000। तो 3,000 पे करने के बाद हमारे पास कितना पैसा बचेगा, 5,05,000 में 3,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को दे दिया तो हमारे पास बचा 5,02,000। सी लिस्ट बी था असेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड, लिस्ट सी है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, और लिस्ट डी है अभी हमें पे करना है टू द, अभी हमें पे करना है टू द डिबेंचर होल्डर्स सिक्योर बाय फ्लोटिंग चार्ज, इसको बोलते हैं लिस्ट डी। हमारे पास कितना डिबेंचर्स है सिक्योर बाय फ्लोटिंग चार्ज, हमारे पास 1,50,000 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा लिस्ट डी है 1,50,000। लिस्ट डी में हमने कितना पे किया, 1,50,000। एनी कंफ्यूजन हियर, हमारे पास है 1,50,000। 1,50,000 हमारे पास कितना है, 1,50,000 हमारे पास है 1,50,000। सो ये पे करने के बाद अभी हमारे पास कितना बचता है, समझ में आया। पहले सिक्योर क्रेडिटर जो क्वेश्चन में दिया था, सिक्योर क्रेडिटर क्वेश्चन में दिया था, आई मीन सिक्योर क्रेडिटर्स में बैंक ओवरड्राफ्ट था। फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्वेश्चन में दिया था 3,000, वो हमने इधर लिखा 3,000 पे कर दिया। तो 5,05,000 में से 3,000 पे कर दिया, तो डिबेंचर होल्डर और अनसिक्योर क्रेडिटर्स को पे करने के लिए 5,02,000 बचा है। अब हमने डिबेंचर होल्डर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस 1,50,000, अभी कितना बैलेंस बचेगा हमारे पास, बैलेंस नेक्स्ट इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस या सरप्लस। तो अभी हम लोग लिखेंगे बैलेंस अवेलेबल फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। कितना बैलेंस अवेलेबल है, माइनस करो 3,52,000 इतना अवेलेबल है। तो इसमें पे करेंगे हम, इसमें पे इधर लिखना है एक और चीज, जितना हम लोग पैसा पे करते हैं इधर भी लिखते हैं,
फिर इसके बाद इधर पे किया 1,50,000 डिवेंचर को, 3,000 पे किया प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को। अभी अनसिक्योर क्रेडिटर्स कितना है? अनसिक्योर क्रेडिटर्स है 60,000, अनसिक्योर क्रेडिटर्स है 60,000। सो हम यहाँ पे लिखेंगे अनसिक्योर क्रेडिटर 60,000, और ये 60,000 में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स इंक्लूडेड नहीं है। देयर वाज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू ₹3,000 विच वर नॉट इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स पूरा हमारा 60,000 है। हम 3,52,000 में से आराम से 60,000 पे कर सकते हैं। तो अभी जो हमारे पास बचेगा, इट विल बी एस्टिमेटेड सरप्लस, estimated surplus available, या estimated surplus available to pay, available for शेयर होल्डर्स। अभी शेयर होल्डर्स को पे करना है, तो ये हमें अभी शेयर होल्डर्स को पे करने के लिए कितना पैसा बचा है? 2,92,000। तो अभी हम किसको पे करेंगे? अभी ये सबको ऐड करो, कितना होता है पहले तो देखो। ये लाइबिलिटी पूरा ऐड करो, 54,000 प्लस 3,000 प्लस 1,50,000 प्लस 60,000, वी आर गेटिंग 2,67,000। अभी हम क्या करेंगे? अभी हम पे करेंगे इशूड एंड कॉल्ड अप कैपिटल। कितना है जरा चेक करते हैं। How much is the issued and paid up capital? It is 24,000 equity shares of ₹10 नीचे भी सिर्फ यही पे करना बाकी है, सिर्फ यही पे करना बाकी है। सो तो दिस इज एज पर व्हाट? दिस इज एज पर, यहाँ पे एच नहीं है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं है, उनको नहीं पे कर सकते। जी है डायरेक्टली, दिस एच इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सो हाउ मच इट इज? 2,40,000। तो ये पे करने के बाद हमें लास्ट में जो बचता है, इट इज द एस्टिमेटेड सरप्लस इन दिस केस, बिकॉज अभी भी हमारे पास एक्सेस पैसा बचा हुआ है। फिर शेयर होल्डर्स को देने के बाद भी हमारे पास सरप्लस बचा, एस्टिमेटेड सरप्लस एज रिगार्ड्स टू, किसको? मेंबर्स बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं? कॉन्ट्रीब्यूटरीज। ये उनको जो सरप्लस मिलाकर ये नेगेटिव आंसर होता तो दिस वुड हैव बीन अ डेफिशिएंसी, बट हमारे पास पैसा ज्यादा है, हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी पे किया और उसके बाद भी हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा बचा, दैट इज सरप्लस। सो विद दिस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज डन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। See, surplus or deficit, one thing I had forgot to mention, estimated surplus or deficit is as per list H, as per list H। तो ये यहाँ पे लिखना इंपॉर्टेंट है कि हमें पता रहे कि एज पर लिस्ट एच इस सरप्लस भी लिस्ट एच है, डेफिशिएंसी भी लिस्ट एच है, तो वो हमें वो भी मेंशन करना है। So now this is complete. Now the statement of affairs is complete. Thank you once again.